So, बच्चों, let's start with NPO concept discussion. NPO concept discussion. कुछ दिन पहले मैंने NPO का क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कर लिया था. अभी मैं NPO का क्या कंसेप्ट डिस्कशन करता हूँ. ठीक है ना बच्चों? चलो, NPO का कंसेप्ट डिस्कशन हम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज NPO? NPO का मतलब है नॉन प्रॉफिट मेकिंग organization. Non-profit making organization. This is called your NPO. NPO. So sir, as the name suggests, this organization's objective is not to make profit. They are basically engaged in upliftment of society or upliftment of any like culture or any tradition kind of things. They are working on that part. So if the objective is not to make profit, then why we will do accounting, sir? Because one of the objective of accounting is to find out profit. Definitely your question is correct, but sir, this is not the only objective of accounting ना. ये accounting का एक ही तो objective नहीं है कि सर only profit calculation करना है. Accounting का और एक objective है क्या? To record the transactions so that we can have a control over the various assets, liability, expense and incomes. So in case of NPO के केस में हम लोगों को accounting क्यों करना है? So that we can have a record of various transactions. And we can control those transactions. ठीक है sir. So it's a revision video. So let me discuss accordingly. चलो ठीक है. So sir, you know what is a profit organization and what are the financial statement includes in case of a profit organization. Financial statement includes, or you can say final account includes. Final account includes what, sir? Final account includes number 1, trading account, profit and loss account, balance sheet. And in case of manufacturing organization, it is manufacturing account also. Similarly, sir, for NPO, the financial statement includes number 1, income and expenditure account. Income and expenditure account, balance sheet. Perfect, sir. You know what? This trading and PL account in case of profit organization में trading and PL account जैसे बनाते हैं, exactly उसी तरह से हम NPO में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं. द ओनली चेंज इज यहाँ पे हमारा नाम चेंज हो गया है. जिसको हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बोलते थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम अब नाम देंगे क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही है. सर, ये जो चीज अपना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब हम कहां से बनाते थे? व्हाट इज द सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ट्रायल बैलेंस. हम लोग ट्रायल बैलेंस से ही तो बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इन केस ऑफ एनपीओ, द सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज most of the cases it is receipts and payment account, or trial balance. At your level, plus 2 level, they will not ask much regarding trial balance. So आप लोगों को रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया होगा, इसमें से हमें इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है. परफेक्ट सर. दिस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज व्हाट सर? दिस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट
This receipt and payment account is nothing but a cash book. A cash book. Sir, cash book मतलब triple column cash book. Basically, in case of NPO, there is no triple column cash book, single column cash book, where we record all cash transactions and bank transactions. अच्छा सर, अब तक क्या समझ में आया कि सर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेडिंग पीएल अकाउंट हम जैसे बनाते थे, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसी तरह से बनाएंगे। बैलेंस शीट यहाँ पे जैसे बनाते थे वहां पे भी बैलेंस शीट हम वैसे ही बनाएंगे। परफेक्ट सर। और कुछ चीज में बताना चाहता हूं, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेडिंग पीएल अकाउंट का एंड रिजल्ट क्या होता है बच्चों? ट्रेडिंग पीएल का एंड रिजल्ट क्या होता है? ट्रेडिंग पीएल का एंड रिजल्ट होता है सर जीपी और एनपी, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, जीपी एंड एनपी। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और नेट लॉस। perfect. In case of income expenditure account, the net result will be not termed as net profit, gross profit. It will be termed as either surplus or deficit. Either surplus or deficit. जो हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालते थे, यहाँ पे वो नाम चेंज हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की जगह क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की जगह क्या हो गया? सरप्लस। और नेट लॉस की जगह क्या हो गया? डेफिसिट। परफेक्ट। फिर हम क्या करते थे सर? इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते थे। यू नो व्हाट कैपिटल? सर, अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बिजनेस। सिंस दिस इज नॉट ए बिजनेस एट ऑल, कोई पैसा को हम कैपिटल नहीं बोल सकते इन केस ऑफ एनपीओ। हम क्या करेंगे? ये जो सरप्लस आया, एवरी ईयर इस सरप्लस को हम एक्यूमुलेट करेंगे। एवरी ईयर हम इस सरप्लस को हम एक्यूमुलेट करेंगे, और डेफिसिट होगा तो सरप्लस एक्यूमुलेटेड है, सरप्लस से हम इसको माइनस करेंगे। तो सर, जो एक पहले साल अपना लेट से कि 10,000 सरप्लस आए, तो फर्स्ट ईयर एंड में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो सरप्लस लिखेंगे 10,000। तो बैलेंस शीट में हम सरप्लस ना लिख के उसको नाम देंगे क्या? कैपिटल फंड। उसको क्या नाम देंगे? कैपिटल फंड। सो व्हाट इज कैपिटल फंड? बैलेंस शीट कहां से शुरू होता है? यहाँ पे बैलेंस शीट में एक आइटम होता है क्या? कैपिटल फंड। एंड व्हाट इज दिस कैपिटल फंड सर? दिस इज नथिंग बट accumulation of surplus और deficits. इन केस ऑफ एनपीओ कैपिटल कुछ नहीं होता है बच्चों, ओनर तो कोई नहीं है, तो कैपिटल कहां से आएगा? तो हर साल एंड में जो सरप्लस आएगा, तो सरप्लस को हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेट करते करते चलेंगे, और उसको हम नाम देंगे क्या? कैपिटल फंड। सर, 3 साल सरप्लस हुआ, 1 साल डेफिसिट हुआ, तो डेफिसिट को हम क्या करेंगे? सरप्लस एक्यूमुलेटेड सरप्लस से माइनस कर देंगे। सर, ऐसा एक सिचुएशन सोचो कि अपना टोटल सरप्लस है 10,000, इस साल अपना डेफिसिट हो गया 12,000, तो हम क्या करेंगे? 10,000 तक हम सरप्लस से रिड्यूस कर देंगे, और 2,000 फिर भी डेफिसिट बच गया ना, वो 2,000 डेफिसिट को हम क्या करेंगे? एसेट साइड में दिखाएंगे एज डेफिसिट। 10,000 का टोटल सरप्लस था हमारा, 3 साल का ऑपरेशन हो चुका है एनपीओ का। 3 साल में हम लोग क्या किए थे? 10,000 का टोटल सरप्लस किए थे। पहले साल में कुछ, दूसरे साल में कुछ, तीसरे साल में कुछ, ऐसे 3 साल का टोटल मिला के सरप्लस हुआ था 10,000। तो इस एक्यूमुलेटेड सरप्लस को हम कैपिटल फंड के नाम पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखे थे। परफेक्ट सर। 4th ईयर में क्या हुआ? अपना 12,000 डेफिसिट हो गया, तो हम क्या करेंगे? 10,000 तक हम एडजस्ट कर लेंगे लायबिलिटी साइड से, कैपिटल फंड से। फिर भी 2,000 अपना डेफिसिट रह गया है ना, वो 2,000 डेफिसिट को हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, परफेक्ट सर। तो सर, जैसे हमारे यहाँ एनपीओ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रायल बैलेंस था, और हम लोग आप लोगों को पता होगा डिस्कस किए थे। ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम होते थे। इस एक कॉलम में जो डेबिट कॉलम में जो आता है उसको डेबिट बैलेंस बोलते थे, क्रेडिट कॉलम में जो आता है उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते थे। डेबिट बैलेंस कहां पे जाएगा? इधर एक्सपेंस होगा, नहीं तो एसेट होगा, और क्रेडिट बैलेंस इधर इनकम होगा, नहीं तो लायबिलिटी। ऐसे कुछ शॉर्टकट हम यहाँ पे भी डालेंगे। देखो, आप लोगों को बच्चों रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया होगा। रिसीट पेमेंट अकाउंट दिखने के लिए कैसे है सर? रिसीट पेमेंट अकाउंट दिखने के लिए ऐसा है, मैं बना रहा हूं। यह है तुम्हारा एक रिसीट पेमेंट अकाउंट। यह है तुम्हारा एक रिसीट पेमेंट अकाउंट।
कैश बुक तो पता है ना, वही सिंगल कलम कैश बुक जैसे होता है ऐसे होता है। परफेक्ट, ये तुम्हारा रिसीट पेमेंट अकाउंट है। यहां पे हम लिखेंगे ऑल रिसीट्स, ऑल रिसीट्स, और यहां पे हम लिखेंगे ऑल पेमेंट्स। क्रेडिट साइड, ये हो गया तुम्हारा डेबिट साइड। जो भी आइटम आपके रिसीट साइड में आएगा, जो भी आइटम्स आपके रिसीट साइड में आएगा, इधर ये आपका इनकम होगा, नहीं तो ये आपका लायबिलिटी होगा। सिमिलरली जो भी आइटम पेमेंट साइड में आएगा, जो भी आइटम पेमेंट साइड में आएगा, इधर ये आपका एक्सपेंसेस होगा या तो फिर एसेट्स होगा। अगर रिसीट पेमेंट अकाउंट में इनकम मतलब रिसीट साइड में है तो इनकम होगा, ये इधर इनकम होगा नहीं तो लायबिलिटी होगा। सर इनकम होगा कैसे, लायबिलिटी होगा कैसे, कैसे पता चलेगा? वही लॉजिक, रेगुलर होने से इनकम, कभी कभी होने से लायबिलिटी। सिमिलरली एक्सपेंसेस, रेगुलर खर्चा होने से एक्सपेंसेस, कभी कभी एक्सपेंस खर्चा होने से एसेट बोलते हैं। अगर इनकम होगा तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, अगर लायबिलिटी होगा तो सर ये बैलेंस शीट में जाएगा। सिमिलरली अगर एक्सपेंस हुआ तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और अगर ये एसेट होगा तो ये क्या होगा, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट सर। तो ये था एक काइंड ऑफ रिवीजन। और इसके बाद ना कैश बुक के बाद आप लोगों को शायद कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिया होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिया होगा। मैं बोलूं प्लस टू लेवल में क्या क्या एडजस्टमेंट ये लोग आपको पूछ सकते हैं। सिंपल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट पूछेंगे। आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट, साइड विल बी एडेड टू कंसर्न्ड एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, इट विल बी एडेड टू कंसर्न्ड एक्सपेंसेस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। परफेक्ट। या तो फिर ये लोग पूछेंगे आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट। या तो फिर ये लोग आपको पूछेंगे क्या, एक्रूड, सॉरी ये दो नंबर के बाद 3 नंबर आएगा ना, एक्रूड इनकम्स का, एक्रूड इनकम्स का। या तो फिर ये लोग क्या पूछेंगे आपको, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का। या तो फिर ये लोग आपको पूछ सकते हैं डिप्रिसिएशन का। बस बच्चों, माई एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं कि प्लस टू लेवल में अगर आपको एडजस्टमेंट पूछ रहा है किसका, एनपीओ में, प्रॉब्लम में, तो आपको इस 5 एडजस्टमेंट से छठवां एडजस्टमेंट नहीं, इतना ही पूछेंगे। और आप लोगों को इसका ट्रीटमेंट सब कुछ पता है। इसीलिए मैं बोलता हूं बच्चों को, एनपीओ में ना बच्चों नया कुछ सीखने का चीज नहीं है। कुछ क्या सीखना है, कुछ नया नया टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। जैसे हम लोग सीखे कि सर ट्रेडिंग पीएल के जगह हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम और ट्रेडिंग पीएल नहीं होगा, क्या होगा उसका नाम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा। जैसे हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में बैलेंस शीट कैपिटल से शुरू कर रहे थे, एनपीओ में बैलेंस शीट शुरू करेंगे लायबिलिटी साइड कहां से, कैपिटल फंड से। और कैपिटल फंड का मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट्स। एग्जैक्टली सर। और भी कुछ कुछ नया नया टर्म्स है, उन आइटम्स का ट्रीटमेंट ही सीखना है इस चैप्टर में। नहीं तो ये चैप्टर मैं बोलता हूं हमेशा एक्सटेंशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़े थे उसका ही एक्सटेंशन है। ये 5 एडजस्टमेंट होता है, इससे 6 नंबर का एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो सर शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखने के लिए कैसे होगा, दिखा लेता हूं फॉर्मेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे दिखेगा सर, ये सिंपल पीएल अकाउंट जैसे वैसे ही दिखेगा।
ये क्या हो गया, ऊपर क्यों चला गया? ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे पीएल अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। हो गया सर? परफेक्ट। तो सर ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपका डेबिट साइड। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब यहां पे हम इनकम लिखेंगे? इनकम नहीं 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 बच्चों, सोचो। पीएल अकाउंट के डेबिट में हम क्या लिखते थे? एक्सपेंसेस लिखते थे ना। नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बट डेबिट में हम यहां पे क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स। और क्रेडिट में लिखेंगे इनकम्स। यह है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। यहां पे ऑल नॉमिनल अकाउंट्स विल कम। यहां पे ऐसे लिखता हूं मैं यहां पे। अच्छा सर ये इनकम एक्सपेंडिचर रिसीव पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है? रिसीव पेमेंट अकाउंट कैश बुक, उसमें हर तरह का रिसिप्ट आएगा। इधर वो सैलरी, हर तरह का रेसिडेंट पेमेंट आएगा। इधर वो सैलरी पेमेंट से भी पेमेंट होगा तो तब भी आएगा। इधर वो बिल्डिंग परचेज करने भी पेमेंट होता है तब भी आएगा। मतलब रिसीव पेमेंट अकाउंट विल टेक इनटू अकाउंट ऑल रिसीट्स वेदर कैपिटल और रेवेन्यू एंड ऑल पेमेंट्स वेदर कैपिटल और रेवेन्यू। बट इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बच्चों यहां पे सिर्फ क्या आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और यहां पे क्या आएगा? रेवेन्यू इनकम्स रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पीरियड। ये भी याद रखो, रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पीरियड। जिस साल के लिए हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं उसी साल का एक्सपेंसेस उसी साल का इनकम ही आएगा। तो रिसीव पेमेंट अकाउंट में आप किसी भी ईयर के लिए कुछ भी रिसीव करो लिख लेना, किसी भी ईयर के लिए कुछ भी पेमेंट करो उसको लिख लेना। तो सर रिसीव पेमेंट अकाउंट इज नॉट पीरियड स्पेसिफिक। That means you can say the receipt payment account is prepared on cash basis, whereas income expenditure account is prepared on accrual basis. Perfect, sir. Revenue items. Revenue items. Perfect. अभी हमें सीखना है treatment of some स्पेशल आइटम्स। स्पेशल आइटम्स बच्चों मुझे बताओ, मैं आपको बोलूंगा आपके पेमेंट साइड में, जैसे पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में सैलरी लिखा हुआ है, आप इसको कहां पे दिखाओगे? सर सैलरी तो पीएल अकाउंट के डेबिट में आता है, बट एमपीओ के केस में पीएल अकाउंट का जगह कौन लिया? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये कहां पे आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में आएगा, मतलब एक्सपेंडिचर साइड में। बट while going through the receipt payment account of MPO, you will find some special items जिसके बारे में आपको जानना, कुछ नया टर्म्स आएंगे। तो वो सब टर्म्स में हम अभी उसका मीनिंग समझेंगे और उसका ट्रीटमेंट भी समझेंगे। इसके अंदर पहला आइटम आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सक्रिप्शन। पहला आइटम आता है क्या? Subscription. Perfect. What do you mean by subscription? It is the amount regularly paid by the members of NPO. NPO के जो मेंबर्स होते हैं
वो रेगुलरली कुछ अमाउंट पे करते हैं, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इट इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ए एनपीओ। ये एनपीओ के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। परफेक्ट। नेक्स्ट, ये पॉइंट नंबर 1। बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या? इट विल बी शोन ऑन द receipt side of receipt and payment account। एक्सेलेंट, क्योंकि सर ये रेवेन्यू है, पैसा आएगा तो हम रिसीट साइड में लिखेंगे। जब हम इसको रिसीट पेमेंट साइड या रिसीट साइड में लिखेंगे ना, हमें कुछ भी दिमाग में नहीं ले लाना है, पैसा आया रिसीट साइड में लिख लिए। और ये किस नेचर का होगा बच्चों? रिसीट में आया है तो इधर इनकम होगा, नहीं तो लायबिलिटी होगा। आप बताओ इसका नेचर इनकम होगा या लायबिलिटी होगा? डेफिनेटली इसका इनकम होगा, इसका नेचर इनकम होगा, क्योंकि ये जो रेगुलरली पैसा आता है, और इसको हम लायबिलिटी नहीं बोल सकते, इसको हम इनकम ही बोलेंगे। इट इज एन इनकम। परफेक्ट, इट इज एन इनकम। हेंस द एनुअल इनकम pertains to subscription shall be shown on the credit side of income and expenditure account। Credit side of income and expenditure। ठीक है, अभी काम का चीज क्या है सर? आप लिखे क्या? एनुअल इनकम। सब्सक्रिप्शन का एनुअल इनकम हम कैसे निकालेंगे? ये क्या क्वेश्चन हुआ सर? जो भी हम सब्सक्रिप्शन रिसीव किए होंगे उसको पीएल अकाउंट के, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे। सोचो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आप पीरियडिकली बनाते हो, एक पीरियड के लिए बनाते हो। लेट्स से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 2013 के लिए, 2023 के लिए बनाए, तो 2023 को रिलेटेड जो इनकम एक्सपेंडिचर जो सब्सक्रिप्शन है उसी को ही हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे। ऐसा हो सकता है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन आपको दिखा है, जो सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहा है, वो सब्सक्रिप्शन में आपका क्या है? इसी साल का कुछ इनकम होगा, कुछ सब्सक्रिप्शन होगा, कुछ प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा। सर प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन क्यों होगा? सोचो, प्रीवियस ईयर में कुछ लोग अगर नहीं दिए होंगे तो इस साल में दे रहे होंगे ना, तो वो प्रीवियस ईयर का कुछ सब्सक्रिप्शन मतलब होगा उसमें, या तो फिर कमिंग ईयर के लिए भी कुछ लोग एडवांस दे चुके होंगे। तो क्या ये जस्टिफाइड है हम पूरा रिसीट जो भी लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन का उसको हम डाल देंगे कहां पे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में? ना, ऐसे तो नहीं हो सकता सर, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है उसको फिल्टर आउट करना है, उसको देखना है कि इसमें क्या करंट ईयर के रिलेटेड अमाउंट है, उसी को ही हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। और वो अमाउंट जानने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। या तो फिर एक स्टेटमेंट बनाएंगे या तो फिर एक अकाउंट बनाएंगे। पहले स्टेटमेंट समझते हैं, फिर अकाउंट के बारे में सोचते हैं। तो सर हम कितना इनकम डालें, कितना सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे, उसके लिए हमें एक वर्किंग्स करना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखो, इसके लिए हम एक वर्किंग बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। Why we are preparing this statement बच्चों? The objective of preparing this statement is to find out how much subscription will be shown in income and expenditure account। हो सकता है जो भी सब्सक्रिप्शन हम रिसीट पेमेंट अकाउंट में दिखाए हैं रिसीट साइड में वो सब करंट ईयर का हो, तो पूरा डाल देंगे। बट देयर इज चांसेस कि
कुछ सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का हो सकता है, कुछ कमिंग ईयर का हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। एंड दिस इज द चार्म ऑफ दिस चैप्टर। एमपीओ में बच्चों का जो भी प्रॉब्लम होता है, इसी वर्किंग्स में ही प्रॉब्लम होता है। लोग तो बच्चों को पता नहीं होता है कि सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे, जो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, बट हम जान लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ये ना बच्चों हमेशा शुरू होता है सब्सक्रिप्शन एज पर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, यहां से हमेशा शुरू होगा। मैक्सिमम और चार टाइप का आपको यहां पे आइटम दिखेगा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड। क्या पता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, या तो फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर और एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का एंड में जो बैलेंस होगा उसका बैलेंस एंड ऑफ करंट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर में होगा या नहीं। सर 31 दिसंबर 2022 में मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग था, डोंट यू थिंक 1 जनवरी 2023 में वही बैलेंस होगा? हाँ सर, ईयर एंड के प्रीवियस ईयर के एंड में जो बैलेंस होगा करंट ईयर के बिगिनिंग में भी वही बैलेंस होता है, क्योंकि हम एक ओपनिंग एंट्री पास करके प्रीवियस ईयर एंड में जो बैलेंस, जो एसेट और लायबिलिटी होता है उसको हम करंट ईयर में लेके आते हैं। आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है सर। या तो फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, या तो फिर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, सीवाई मतलब करंट ईयर। एक क्वेश्चन में ना सब्सक्रिप्शन को रिलेटेड इतना ही आइटम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे कम ही हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर ये हम कुछ 4-5 आइटम को ठीक से समझ लेंगे ना, अपना काम हो जाए। और इसको समझने के लिए एक ट्रिक है, हम एक एक आइटम को, मतलब देखो ये तो अपना रिसीट पेमेंट अकाउंट में दिया होगा, छोड़, बाकी सब अपना कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये 4 आइटम को हमें ठीक से एनालाइज करना है। अगर इस 4 आइटम को हम लोग सही से समझ गए ना, अपना काम हो गया। इस 4 आइटम को समझने के लिए आपको सिर्फ दिमाग में एक ही चीज रखना है, जब भी आप एक आइटम को पिक करेंगे उसको पूछना है लिटरली, भाई तू रिलेटेड टू करंट ईयर है या नहीं। अगर ये करंट ईयर का रिलेटेड है तो इसको हम सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट पेमेंट अकाउंट, मतलब इस फिगर में उसको ऐड करेंगे। अगर रिलेटेड टू करंट ईयर हुआ, अगर रिलेटेड टू करंट ईयर नहीं हुआ तो प्रीवियस ईयर के लिए होगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। कुछ भी हो, प्रीवियस ईयर के रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर के रिलेटेड हो, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर रिलेटेड टू करंट ईयर हुआ तो ऐड करेंगे, अगर नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर हुआ, अगर करंट ईयर रिलेटेड नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर होगा, नहीं तो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर होगा। जो भी हो, प्रीवियस ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, हमें इतना और कैलकुलेशन नहीं करना है। क्या, सिंपल, नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, reduce from above figure that is as given in the receipt payment account. अगर रिलेटेड टू करंट ईयर तो ऐड करो। इतना ट्रिक है बच्चों। इफ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर, add to the figure. If subscription not related to current year, whether it is related to previous year or next year, deduct from the figure. You will find out the what? You will find out what? Subscription to be transferred to income and expenditure account, और इसका और एक नाम क्या है,
इसका और एक नाम है एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन। परफेक्ट, एनुअल सब्सक्रिप्शन। बच्चों अभी शुरू करते हैं। ये आपको हमेशा दिया होगा, फिगर डायरेक्ट दिया होगा, इसी से ही हमें कुछ प्लस माइनस करना है। ये 4 आइटम को हमें प्लस माइनस करना है और हम यहां पे डायरेक्टली आके पहुंच जाएंगे। कहां पे? इस फिगर में हम लोग आके पहुंच जाएंगे। परफेक्ट सर, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ। किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, मैंने कुछ नहीं बताना, आपको ही बताना है मुझे। एक एक आइटम को पिक करेंगे। मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूं बच्चों तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। 1 2 3 4। ये फर्स्ट आइटम पिक करते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के एंड में कुछ अमाउंट बाकी है। ये क्या होगा? डेफिनेटली ये रिलेटेड टू करंट ईयर होगा, ये रिलेटेड टू करंट ईयर होगा। अगर कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो सर ये डेफिनेटली रिलेटेड टू करंट ईयर होगा। अगर ये रिलेटेड टू करंट ईयर है तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एक सेकेंड रुक जाओ, मैंने यहां पे थोड़ा लिखना है, यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4। इसको क्या करेंगे सर? हम इसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये रिलेटेड टू करंट ईयर है ना बच्चों। लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। इस साल के एंड में कुछ सब्सक्रिप्शन बाकी है। इसका मतलब आप लोगों को क्या समझ में आएगा कि इस साल वो लोग कुछ देने वाले थे, नहीं थे। परफेक्ट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है बच्चों। करंट ईयर का बिगिनिंग मतलब आज हम करंट ईयर शुरू किए हैं, शुरू किए हैं तो इस साल का तो सब्सक्रिप्शन कभी भी बाकी नहीं होगा, क्योंकि आज शुरू किए हैं। तो अगर हम मांगेंगे भी मेंबर लोगों को सब्सक्रिप्शन को तो कुछ तो टाइम देंगे, 1-2 दिन तो टाइम देंगे कि 1-2 दिन में दे दो। आज मांगते मांगते ही ये आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। अगर ये आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर में, तो ये डेफिनेटली क्या होगा? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, जो ओपनिंग एंट्री के थ्रू में बिगिनिंग में आया होगा। तो बिगिनिंग करंट ईयर बिगिनिंग में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो ये रिलेटेड टू क्या होगा? प्रीवियस ईयर। अगर ये रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर है तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, मतलब इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, क्योंकि ये नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? हम करंट ईयर रिलेटेड सब्सक्रिप्शन निकाल रहे हैं। परफेक्ट। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर। बच्चों करंट ईयर के एंड में आप कुछ एडवांस दिए हो, किस ईयर के लिए दिए होगे? सब्सिक्वेंट ईयर के लिए। 2023 के एंड में आप कुछ एडवांस दिए हो, किसके लिए? 24 के लिए ना। मतलब ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एडवांस फॉर, मतलब सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब सब्सिक्वेंट ईयर्स। नेक्स्ट ईयर, दैट मींस दिस सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर। ये 2024 का सब्सक्रिप्शन 23 में दिए हुए हैं हम लोग, तो ये नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर होगा। अगर ये नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर होगा तो हम क्या करेंगे? इसको रिड्यूस करेंगे, माइनस करेंगे। एडवांस इज ऑलवेज फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर ना बच्चों, एडवांस इज ऑलवेज फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। करंट ईयर का सब्सिक्वेंट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर, तो ये नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर। परफेक्ट। फोर्थ वाला मजेदार है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। बिगिनिंग, साल शुरू होने में ही हम लोग एडवांस, मतलब ये क्या होगा? प्रीवियस ईयर में हम लोग कुछ एडवांस दिए होंगे, वो उसका बैलेंस यहां पे आ गया। प्रीवियस ईयर में हम कुछ एडवांस दिए होंगे, तो प्रीवियस ईयर का सब्सिक्वेंट ईयर क्या होगा? एडवांस इज ऑलवेज फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। सब्सिक्वेंट मतलब क्या बोले हम? उड़िया में उसको बोलते हैं परवर्ती। हिंदी में क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो सर एडवांस इज ऑलवेज फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। हम लोग प्रीवियस ईयर में एडवांस दिए, प्रीवियस ईयर का सब्सिक्वेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का सब्सिक्वेंट ईयर क्या होगा? करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का सब्सिक्वेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के बाद क्या आएगा? करंट ईयर आएगा ना। तो ये जो अमाउंट हम एडवांस प्रीवियस ईयर में पे किए थे, वो किस ईयर के लिए पे किए थे? करंट ईयर के लिए पे किए थे। दैट मींस ये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है। करंट ईयर का है तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। इतना करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या? इसको बोलेंगे हम लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन, या तो फिर सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। परफेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है आपको, प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, प्रिपेयर
सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाओ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए ना बच्चों आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होना चाहिए। स्टेटमेंट को दिमाग में रख के ये अकाउंट हम लोग बना लेंगे। स्टेटमेंट को दिमाग में रख के ये अकाउंट हम लोग बना लेंगे। परफेक्ट। कैसे साहब? देखो, स्टेटमेंट का पहला आइटम क्या था? सब्सक्रिप्शन एज पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, सर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है मतलब हम लोग इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव करने से जर्नल एंट्री क्या होता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव करने का जर्नल एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। बाई कैश अकाउंट। कैसे? ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव किए, इनकम रिसीव किए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। परफेक्ट सर। नेक्स्ट आइटम क्या था? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। बोलो, स्टेटमेंट में आप इसको क्या किए थे? ऐड किए थे। मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या है? इनकम। अगर आप एक आइटम इनकम में ऐड करोगे तो इनकम बढ़ेगा। इनकम इंक्रीज होने से इनकम क्रेडिट होता है, तो हम इसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। पता चला कैसे आया? यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करेंट ईयर रिलेटेड टू करेंट ईयर होता है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया। तो इसको हम क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे। जब हम सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे तो सब्सक्रिप्शन का बैलेंस इंक्रीज होगा। सब्सक्रिप्शन इंक्रीज होगा मतलब इनकम इंक्रीज हुआ। इनकम इंक्रीज होने से कहां पे आएगा? क्रेडिट में आएगा ना, तो इसको हम क्रेडिट में डालेंगे। वैसे और एक आइटम था एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का एंड मतलब उसका सब्सिक्वेंट ईयर क्या होगा? करंट ईयर। तो रिलेटेड टू करंट ईयर है, तो इसके लिए भी हम इसको ऐड किए थे। ऐड करने से इनकम इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने से क्रेडिट साइड में आता है। इनकम इंक्रीज होने से क्रेडिट साइड में आता है। बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, या तो फिर बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। मैंने वो लिखा है वहां पे, यहां पे नहीं लिखना। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर मतलब नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे मतलब सब्सक्रिप्शन गिरेगा, सब्सक्रिप्शन घट जाएगा, घटने से क्या होगा? डेबिट होगा। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन at the end of previous year. Two, advance subscription at the end of current year. करंट ईयर के एंड में आप जो एडवांस पे हो मतलब पे कर रहे होंगे तो उसको ये किस ईयर को रेट होगा? नेक्स्ट ईयर को। नेक्स्ट ईयर मतलब फिर हम इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने से क्या होगा? सब्सक्रिप्शन गिरेगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने से सब्सक्रिप्शन डेबिट होगा, तो सब्सक्रिप्शन के डेबिट में ही आएगा। इतना होने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमेशा यहां पे आएगा डेबिट साइड में। इसको हम नाम देंगे क्या? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज व्हाट? बैलेंसिंग फिगर। एज व्हाट? बैलेंसिंग फिगर। एंड हो गया अपना क्या? हो गया अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, particulars amount in rupees. रेडी? परफेक्ट सर। और ये अकाउंट को हम यहां पे क्लोज कर देंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो आपको वो स्टेटमेंट याद करके सिंपल करना है। स्टेटमेंट में ऐड हुआ है तो क्रेडिट साइड में आएगा, स्टेटमेंट में रिड्यूस माइनस हुआ है तो डेबिट साइड में आएगा, और डिफरेंस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। कुछ टाइम पे क्या होता है कि सर
आपको इस अकाउंट में किसी एक आइटम मिसिंग फिगर होगा, फाइंड करो बोलेगा, वो भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि सोचो कि सब कुछ दिया होगा, ये भी दिया होगा आपको, और ये वाला आइटम नहीं दिया होगा, ये वाला आइटम नहीं दिया होगा, तो हम बाकी सब डालेंगे तो वो वाला आइटम जो नहीं दिया है वो वाला मिसिंग फिगर में आ जाएगा। परफेक्ट सर। नहीं नहीं, थोड़ा एक सेकंड बच्चों, क्या हो गया? हाँ, क्यों 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 परेशान कर रहा है? ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मेट ही डाल रहा हूँ। ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। परफेक्ट, एक सेकेंड बच्चों, चलो शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट यही है सब्सक्रिप्शन। आपको बार बार इस वीडियो को देखना है सब्सक्रिप्शन को समझ में लाने के लिए। फिर और एक आइटम हम लोग पिक करते हैं बच्चों, उसको नाम देते हैं हम क्या? डोनेशंस। इसमें दिए थे हम लोग हेडिंग सब्सक्रिप्शन। इसमें सेकेंड स्पेशल आइटम इन केस ऑफ एनपीओ इज डोनेशन। डोनेशन, इसका मतलब क्या है सर? सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? अमाउंट गिवन बाय द मेंबर्स, अमाउंट गिवन बाय द मेंबर्स, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स रेगुलरली इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। डोनेशन में क्या होगा कि सर ये वाला अमाउंट एनपीओ रिसीव करेगा मेंबर से भी, नॉन मेंबर से भी। मेंबर से रिसीव करेगा और नॉन मेंबर से भी रिसीव करेगा। जो मेंबर डोनेशन देगा वो सब्सक्रिप्शन भी दे रहा होगा। सब्सक्रिप्शन के बाद अगर कोई मेंबर चाहता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, उसको बोलेंगे डोनेशन। और अगर कोई नॉन मेंबर, मतलब मैं एनपीओ का मेंबर नहीं हूं बट एनपीओ का काम देख के मुझे इतना खुशी लगा कि मैंने कुछ पे करने के लिए सोचा, जब मैं कुछ पे किया तो एनपीओ रिसीव करेगा, उसको बोलेंगे डोनेशन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सब्सक्रिप्शन इज ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स बट डोनेशन कैन बी कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स और नॉन मेंबर्स। तो इसको क्या लिखेंगे? इट इज द अमाउंट, it is the amount given by the members or non-members or non-members. Perfect. Donations are of two types. डोनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है। डोनेशन दो तरह का होता है। एक है जनरल डोनेशन और एक है स्पेसिफिक डोनेशन और स्पेशल डोनेशन। परफेक्ट सर, ये क्या है? कैसे हम किसको जनरल डोनेशन बोलेंगे, किसको स्पेसिफिक डोनेशन बोलेंगे? डोनेशन रिसीव्ड
डोनेशन रिसीव्ड विदाउट अटैच्ड विथ एनी कंडीशन और पर्पस। आप कुछ डोनेशन रिसीव किए हो जिसमें कोई कंडीशन या पर्पस नहीं लिखा हुआ है, बस मैं खुश हुआ, आपको कुछ पेमेंट कर दिया। इसका ये अमाउंट को हम कहां पे यूटिलाइज करेंगे, उसका कुछ कंडीशन मैंने फिक्स नहीं किया था, उसको बोलेंगे जनरल डोनेशन विदाउट एनी पर्पस। इफ अमाउंट रिसीव्ड विदाउट एनी पर्पस इज नोन एज जनरल डोनेशन। बट इज स्पेसिफिक और स्पेशल डोनेशन सेम। डोनेशन रिसीव्ड for a particular purpose, for a particular purpose। मैं डोनेशन दिया कोई एनपीओ को विद कंडीशन थी, ये अमाउंट को आपको स्कूल के बिल्डिंग बनाने में खर्चा करना है, स्कूल के बिल्डिंग बनाने में खर्चा करना है। दैट मीन्स जब मैं डोनेशन देके उनको बोल दिया ये पैसा आपको और कहीं नहीं खर्चा करना है, सिर्फ 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 स्कूल के बिल्डिंग में ही खर्चा करना है। दैट मीन्स एनपीओ इज नाउ हैविंग एन ऑब्लिगेशन। क्या ऑब्लिगेशन है कि मुझे ये पैसा सिर्फ स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही खर्चा करना है। और आपको पता होगा द मोमेंट यू हर्ड द वर्ड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी। परफेक्ट सर, इट इज अ लायबिलिटी, इट इज अ लायबिलिटी। वेयरएज ये वाला क्या होगा, इट इज एन इनकम। सिंस नो कंडीशन और पर्पज हैज बीन अटैच्ड, हम इसको इनकम बोलेंगे, बट यहां इसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। परफेक्ट सर। ट्रीटमेंट क्या होगा सर इसका, डोनेशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने यहां पे लिख लेना है, मैंने यहां पे लिख लेना है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ग्रीन पेन लिखते हैं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होगा। नंबर 1, इट विल बी शोन ऑन द receipt side of receipt and payment account। Excellent sir। if general donation, अगर ये जनरल डोनेशन होगा देन टू बी सोन इन, कहां पे इनकम है ना, टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड। अगर स्पेशल डोनेशन है तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बस जब भी आपको एनपीओ के प्रॉब्लम में डोनेशन दिखेगा आपके दिमाग में आएगा ये डोनेशन रिसीट पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में होगा। एंड सेकेंड, चेक करो क्या इस डोनेशन में कुछ पर्पस अटैच हुआ है, जैसे कि डोनेशन फॉर स्कूल बिल्डिंग, डोनेशन फॉर समथिंग एल्स, या सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ, कोई पर्पस अटैच नहीं। अगर पर्पस अटैच हुआ है तो इसको लायबिलिटी में दिखाना है, अगर कोई पर्पस अटैच नहीं हुआ तो इसको इनकम में दिखाना है, इसको इनकम में दिखाना है। ये है आपका डोनेशन का मीनिंग, डोनेशन का ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो सर और एक कर लेते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। चलो, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रेंस फीस, और इसका और एक नाम भी है एडमिशन फीस। एडमिशन फीस क्या मतलब है इसका सर?
It is the amount given by the members at the time of getting the membership. At the time of getting the membership. It is a receipt and hence to be shown on the receipt side of a receipt and payment account. Perfect. सर इसका ट्रीटमेंट और कहां पे होगा? इसका ट्रीटमेंट और कहां पे होगा, इसके लिए हमें दो चीज को देखना है बच्चों। देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स फॉर एंट्रेंस फीस। देखो ये एक तो रिसिप्ट है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आ गया कि सर हम इसको तो रिसिप्ट साइड में है तो इधर इनकम होगा नहीं तो लायबिलिटी होगा, तो हम इसको इनकम ले या लायबिलिटी ले। देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, दो तरह का चिंताधारा है। क्या चिंताधारा है, क्या स्कूल ऑफ थॉट्स है कि सर एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि ए मेंबर हैज टू पे दिस अमाउंट वंस इन इट्स लाइफ। एक बार जब ज्वाइनिंग के टाइम पे, एडमिशन लेने के टाइम पे, एंट्री के टाइम पे ही एक बार देता है। Hence non-recurring, non-repetitive in nature and इसको liability लेवल, इसको liability लेवल, ठीक है। और एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है ठीक है आपका ये वाला हम लोगों को समझ में आ गया कि एक मेंबर ये वाला एंट्रेंस फीस एक ही बार जिंदगी में देता है, बट सर बिजनेस तो मतलब एनपीओ तो बिजनेस तो हुआ ठीक नहीं है। एनपीओ तो साल में सिर्फ एक ही मेंबर को एडमिट नहीं करना होगा, थ्रू आउट योर मेंबर ऐड होते होंगे। अगर थ्रू आउट योर मेंबर्स ऐड होते होंगे तो रिपीटेडली हम लोग एंट्रेंस फीस रिसीव कर रहे होंगे, तो ये रिपीटेटिव नेचर का हो गया। तो इसमें हम क्या कल बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। दोनों का लॉजिक सही है। एक स्कूल ऑफ थॉट बोला कि एक मेंबर लाइफ में सिर्फ एक ही बार एंट्रेंस फीस देता है तो इसको नॉन रिपीटेटिव मान के लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। और एक स्कूल ऑफ थॉट बोला कि ठीक है मेंबर तो एक ही बार देता है बट देयर इज नथिंग लाइक दिस की एनपीओ विल जॉइन ओनली वन मेंबर इन अ ईयर। एनपीओ तो रेगुलरली मेंबर्स को ज्वाइन करता रहता है, तो मेंबर लोग रेगुलरली एंट्रेंस फीस दे रहे होंगे, मतलब एनपीओ रेगुलरली एंट्रेंस फीस रिसीव कर रहा होगा, तो इसको हम इनकम मानेंगे। एंड हम लोग ये दोनों को क्या मानेंगे? अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है इसको लायबिलिटी लो तो लायबिलिटी लेंगे, अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है इसको इनकम लो तो इनकम लेंगे, अगर कुछ नहीं बोला है तो आपका कॉल, आप जो भी ले सकते हो, या तो फिर लायबिलिटी ले सकते हो या तो फिर इनकम ले सकते हो, ठीक है। परफेक्ट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस whether it is an income or liability. First, give preference to information given in question. क्वेश्चन में बोला है इनकम, इनकम, क्वेश्चन में बोला है लायबिलिटी, लायबिलिटी। अदरवाइज का मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अदरवाइज दैट इज इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन साइलेंट देन स्टूडेंट्स आर free to consider this as per their assumption, as per their assumption। वो चाहे तो इनकम में दिखा सकते हैं, वो चाहे तो लायबिलिटी में दिखा सकते हैं, दोनों में नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंट्रेंस फीस का
ट्रीटमेंट मीनिंग सब कुछ। तो सर एक सेकेंड रुको। तो सर चलो हम लोग आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और एक सेशन लगेगा अपना कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करने के लिए, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से वो डिस्कस कर लेंगे, और प्रॉब्लम कैसे करेंगे उसका एक में स्टेप वाइज डिस्कशन आपसे करवा दूंगा, और अपना काम इसमें खत्म हो जाएगा। सही है। तो एक क्वेश्चन मैंने जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्या, कि सर एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट। वो वाला क्वेश्चन में कल डिस्कस कर, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर। तो सर चलो ठीक है, विद दिस वी आर वाइंडिंग अप, इसका क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, और होप करते हैं कि नेक्स्ट सेशन ऑफ एनपीओ जल्दी आ जाए। मैं काफी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ आजकल, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया, अभी भी कर दूंगा आपका एनपीओ। एनपीओ खत्म होने के बाद हम लोग पार्टनरशिप का नहीं, कंपनी अकाउंट्स का डिस्कस कर लेंगे, और पार्टनरशिप लास्ट कर देंगे। और सिंगल एंट्री का मैं सोच रहा हूँ कि पूरा डिटेल क्लास करके छोड़ दूँ सिंगल एंट्री का। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास